ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿੱਸਾ, ਪੜਾਅ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਰਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਧਰਮ ਖੰਡ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ। ਸਾਧਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧੇਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਬਣਾਣਾ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਵੈਸਾ ਬਣਾਣਾ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਵੈਸੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਗਮਨ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਰਅ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਤ, ਕੁਝ ਤਰਕ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਲਾਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਨੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਫਿਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਲ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਮਨ ਦਾ ਤਲ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕਰਮ ਵੈਸੇ, ਕਿਰਿਆ ਵੈਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੈਸੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਉਹ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧਨਾ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜੈਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਨਾਤਨੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਛ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰੜੀ ਹੈ। ਰੰਗਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਰੰਗਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਰੰਗਣਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗਲ। पर इस तो पहले तन है, ये सामने है, ये अस्तूल है। तो मैं फिर इतनी अर्ज कर देना, तुसी सारे सियाणे हो कि बार बार दोहराने की लोड़ नहीं। जो शरीर के तल पे कामयाब नहीं, जैसा गुरु चाहता वैसा शरीर बना लेना मुश्किल है। वो मनुख मन के तल पे कामयाब हो गए कि जैसा गुरु चाहता वैसा वो मन बना लगे। वो तो बहुत करड़ी साधना, बहुत औखी साधना। ते इतनी गल मननी पैगी कि गुरु साडे नालों अगे है, गुरु साडे नालों वड्डा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ते अन्य धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मनुख के अंदर एक प्रीत है, एक खिच है, एक कशिश है, एक तड़प है। सारियां दे अंदर है, पंछियों के अंदर भी है, पशुओं के अंदर भी है। वो जिहड़ी प्रीत है अपने तो छोटियां दे उत्ते जिस वक्त जाती है, उस प्रीत नूं कहण स्नेह। ते वो प्रीत जब अपने ते बराबर वालियां नाल जाके संबंध जोड़दी है, उन्होंने कहण प्रेम। ते ओही प्रीत जब अपने तो वड्डियां नाल संबंधित होंदी है, उन्होंने कहण शरधा। शरधा, प्रेम, स्नेह इक्को ही गल है। छोटियां नाल स्नेह, बराबरी वाले नाल प्रेम, वड्डे नाल शरधा। धार्मिक खोजी कह रहे हैं कि संसार विच शरधा खोंदी जा रही है। क्यों? अपने तो वड्डा मनना बड़ी औखी गल है। शरधा होंदी अपने तो वड्डे जो मन लईए, हाँ ये मैथों अगे है, मेरे नालों अगे है, मैथों वड्डा है। तो मनुख का हंकार हुण इतना वड्डा हो गया है कि अपने नालों वड्डा किसी नूं भी मनण नूं राजी नहीं। तो शरधा तो हो कि बराबरी का दर्जा भी देने को तैयार नहीं, प्रेम भी खो गया। बस स्नेह है थोड़ा बहुत, तो बच्चियां दे तल देते हैं। बच्चियां बराबरी देनी बड़ी औखी गई, और प्रेम का जन्म होता है बराबरी की तल पे। इतनी मैं अर्ज कर दें, गुलाम ते मालिक विच कोई प्रेम नहीं होता, दास ते मालिक विच कोई प्रेम नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस गल को समझिया सी कि मैं अमृत छकाया है, अमृत छकाण के नाते मैं गुरु हाँ ये सिख ने, मैं दाता हाँ ये मंगते हैं। देण के नाते मैं दाता हाँ ये मंगते हैं, देण के नाते मैं गुरु हाँ ये सिख ने। तो बराबरी तो हो ही ना, प्रेम नहीं पैदा होगा। तो पता है आप फिर उन्होंने पंजा दे अगों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हुण मैनूं दे। कोई लोड़ नहीं सी, ते अमृत की मूर्ति सन, उन्होंने तो रोम रोम विचों अमृत निकलता सी। ऐसा क्यों किया? बराबरी देनी सी, क्योंकि प्रेम बराबरी के गल पे होंदा है। जो छोटा है तो गल बड़ी औखी है। बराबरी मेरे बादशाह ने दी। इस वास्ते शाहद मुहम्मद लतीफ कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का एक रूप नहीं है। उन्हें कुछ जीवन कथा लिखी है, कहता मैं लिखण दे असमर्थ हाँ। बई क्यों? कहता जब मैं देखदा कि हथ विच कलम है कि लिखण विच कोई लीन है, जमुना के तट पे बैठा है, ऐसा प्रतीत होता है कोई शायर है, कोई कवि है। पर जब मैं देखदा हथ विच तलवार है, भंगाणी के युद्ध विच तलवार पे ही चल रही है। जिस हाथ विच कलम से उस विच तलवार, ख्याल आ जाता है कि कोई सूरमा कोई योद्धा। जब मैं देखदा कि उपदेश पिया करदा वाहिद अल्लाह का, उदों एक रहबर प्रतीत होता है, उदों एक गुरु प्रतीत होता है, उदों एक रहनुमा प्रतीत होता है। जब मैं देखता हूं सोने के सिंघासन पे बैठा है, गले विच मोतियां की माला पहनी है, शीश पे कलगी लाई है, ऊपर चौर हो रही है, उदों बादशाह प्रतीत होता है, बादशाह शहनशाह। फिर मैं जब देखना हाथ जोड़ के पंज प्यारियां के अगों खड़ा है, उदों मंगता प्रतीत होता है, भिखारी प्रतीत होता है।
भाई साहब भाई नंद लाल भी कहते हैं, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह कभी दरवेश नहीं होया करते, ते दरवेश कभी बादशाह नहीं होया करते। बगौर कभी मुताला करके देखना, जो बादशाह है वो दरवेश नहीं है, जो दरवेश है वो बादशाह नहीं है। नंदलाल कहना रूहे जमीन पे एक ऐसी मूर्ति आई है जो बादशाह भी है दरवेश भी है, और जिसों हक की झलक मिलती है। हक 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 कहने सच्चाई, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। तो मैं अर्ज करें, असी प्रेम पनपदा है बराबरी के तल पे। गुरसिख प्रीत गुरसिख मुख पाए, गुरु की सिख नाल बड़ी प्रीति है, ते प्रीति तां ही हो सकती बराबरी का दर्जा देके, वरना नहीं होती। स्नेह होंदा है अपने तो छोटिया नाल, प्रेम होंदा है अपने तो बराबरी नाल, ते श्रद्धा होंदी है अपने तो वड्डे नाल। अंदर जिहड़ी खिच है, जिहड़ी कशिश है, जिन्हों प्रीत कहते हैं, ये तीन रूप बन जाते हैं। छोटिया नाल स्नेह, बराबरी वाले नाल प्रेम, वड्डे नाल श्रद्धा। तो जिस ढंग नाल खोज की धर्मी पुरुषों ने कह रहे हैं कि श्रद्धा खो गई, अपने तो बड़ा मनना ही बड़ी औखी गल है। बई मैथों बड़ा थोड़ी है, श्रद्धा खो गई। ते बराबरी देनी भी बड़ी औखी गल हो रही है, बराबरी। तो प्रेम भी खो गया। सिर्फ मनुख की दुनिया थोड़ा बहुत स्नेह बचे, बच्चों नाल कर लेना बस, इस तो ज्यादा नहीं। बराबरी नहीं देने तैयार बंदा, भरा में भी बराबरी देनी नहीं पैंती। भाई जैसा मैं वैसा ही है, इससे मेरे कोई फर्क नहीं। उत्थे तो प्रेम पैदा होगा, भाई ये मैथों वड्डा है। फिर श्रद्धा कहते ने, श्रद्धा मां बाप ते हुंदी सी, प्रेम भरावां भैणां नाल हुंदा सी, स्नेह बच्चियां नाल हुंदा सी। तो बड़ी मुश्किल नाल थोड़ा बहुत स्नेह बचिया, प्रेम खो गया, श्रद्धा खो गई। कि जब मां बाप ने वड्डा मनण तो मनुख का मन इनकारी होवे, तो गुरु नूं किस तरह वड्डा मनेगा, रब नूं किस तरह वड्डा मनेगा। ऐलानिया तौर पर अद्धी दुनिया अज नास्तिक है, वो ऐलान कर दें कोई रब नहीं। चाइना है, रूस है, चेकोस्लोवाकिया है, बल्गारिया है, हंगरी है, पोलैंड है, ये सब नास्तिक देश। चाइना विच बौद्ध मठ उजड़ गए और मस्जिदां ते चर्च रशिया में सुनने हो गए, उजड़ गए। ऐलानिया तौर पर कह रहे कोई रब नहीं, कदों का मर चुके, असी दी कबर बना दी। दरअसल इतनी गल है, ये कह रहे हैं साथों वड्डा कोई नहीं। अपने तो वड्डा मनना बड़ी औखी गल है, कि जिसनों अपने तो वड्डा मन लईए ते उहदे ते श्रद्धा भी पैदा हो गई होवे। इहदा सबूत की है? इहदा सबूत है कि वड्डे दी गल बंदा ठुकरांदा नहीं, मन लैंदा। मैं कई दफा देखदा कि लोग पुत्रां दी नाजायज गल भी मन लैंदे ने, मित्रां दी नाजायज गल भी मन लैंदे ने, पत्नी दी गलत गल भी मन लैंदे ने, या पति दी गलत गल भी मन लई जांदी है। गुरु दी जायज गल भी नहीं मन्नी जाती। गुरु की सही गल नूं भी मनण तो मन इनकारी है। बगौर कभी मुताला करना, मित्रां की गलत गल भी मन लेंदे, पुत्रां की गलत गल भी मन लेंदे, परिवार की गलत गल भी मन लेंदे, संसार की गलत गल भी मन लेंदे, गुरु की सही गल भी नहीं मनते। कारण कि गुरु नूं बराबरी या अपने तो वड्डा समझना बड़ी औखी गल, बहुत औखी गल। गुरु की गल क्यों ठुकरा देंगे? साथों वड्डा थोड़ी है, साथों नहीं वड्डा। और इस वास्ते मैं अर्ज करना कि सुनना बड़ी सौखी गल है, सुनन लग्या की औखियाई है, मनन लग्या औखियाई है। इस वास्ते मनन वाले भी बड़ी महिमा है। मनने की गत कही न जाए, जे को कहे पछे पछताए। जिन्हें सुन के मन लिया सैकन ओदी महिमा नहीं कह सकते, ओदी महिमा बयान ही नहीं कर सकते। कागज कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा संसार में कोई कागज नहीं कि समुचे कागज देते उस मनुख की महिमा लिख दी जाए जिन्हें मन लिया। ऐसी कोई कलम नहीं, ऐसा कोई लेखक नहीं जो लिख सके। कागज थोड़ा है, कलम है नहीं,
लिखण वाला भी कोई नहीं, जो उस मनुख की अवस्था बयान कर देवे जिसने सुन के मन ले। ते गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, जिन्नी सुन के मनिया हों तिन बलहारे। जिसने सुन के मन लिया सदके जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, उस तो निछावर जाते हैं। इन्हें निरा सुनिया नहीं, मनिया। तो सुनन वालियां की भीड़ मैं करीबन समुची दुनिया च वेखी है। लोकी कीर्तन भी सुनते हैं, अखंड पाठ भी सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं। सुनन वालियां की बहुत वड्डी भीड़, ते कदी गिणती करोगे मनण वाले, क्षमा करनी दो हत्थां दीयां जड़ियां उंगलियां ने ना, शायद इन्हां दे उत्ते ही गिणे जाण, बस इस तो ज्यादा मनुख नहीं मिलते। बहुत लंबी चौड़ी भीड़ है। सुनना आसान है, सुनन लग्या कोई अपने आप को बदलने की लोड़ भी नहीं। चलो सुन लिया, गल खत्म, सुन ली। पर मनन लग्या तो बदलना पैंदा। ते मनदा मनुख किसदी गल है, जिसदे बारे ये कबूल कर लगे मैथों वड्डा, उत्थे शरधा होंदी है। शरधा खो गई है, शरधा नहीं गई। इतनी गल मननी पेगी मैथों वड्डा है, कि पुरखा जब तैथों वड्डा है तो फिर गल मन, गल खत्म, फिर तो शरधा नहीं है। अपने तो वड्डा मनना बड़ी औखी गल है। तो जिस दिन मनुख का मन कहता है कि गुरु मेरे नालों वड्डा है, बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, धार्मिक दुनिया च बहुत अगे है, बहुत अगे है, और जो कुछ भी कहता है सही कहता है, सही कहता है। शरधा ऐसी जागती है, बचन गुरु जो पूरे कहा, मैं छीक गाठड़ी बंद, वो एकदम मन लिया, ठीक है मैं मन लिया। ऐ गुरु जो तू कहा है मैं मन लिया, मैं कबूल करना। और उस दिन सुनिया होया ते गाया होया लेखे लग जाता है। गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आ गया सत सत कर्मा। उस दिन लेखे लग जाता है। सुनिया होया लेखे लग गया, पढ़िया होया लेखे लग गया, गाया होया लेखे लग गया। जब अंदरों कह दिता सत है, ठीक है, ठीक है, मैं गलती पे हाँ, तू सही है, मैं कबूलदा, मैं प्रवान करदा। तो मैं इतनी अर्ज कर दिया, सुनने वाले की भीड़ में देख के किधरे इस चक्कर च ना पै जाना कि लोग मनण वाले ने। ते हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो गए, मैं सुनने वाले देखे न समुची दुनिया, सुनने वाले, मनण वाले नहीं, बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। और ऐसा भी देखे बार बार सुनते हैं, सालां बदी सुनते हैं, मनना औखा है। क्योंकि मनन लगे बदलना, मनन लगे तब्दील करना अपने, तो मनना ही बड़ी औखी गल है। सुनन लगे की औखिया जी, तुसीं सुन लो की औखिया, एक शब्द सतगुरु का वाक सुन लो की औखिया जी, पर जब मनन की गल आएगी बहुत औखा। कीर्तन तुसीं सुन लिया की औखिया जी, कोई औखिया नहीं। जब मनन की गल आएगी औखिया जी। शब्द की कथा तुसीं सुन लई की औखिया जी, कोई औखिया ही नहीं। कि जब मनन की गल आएगी तो जिहड़ा पुराना ढांचा साडे कोल है तोड़ना पेगा, नवे ढांचे को कबूल करना पड़ेगा। इस वास्ते मनना बहुत औखा है। और इस वास्ते गुरु नानक कहने में तो सदके जाना उस तो जिसने सुन के मन लिया, जिन्हें सुन के मनिया हों तिन बलहारे जा। कुर्बान जाते हैं, सदके जाते हैं। इन्हें निरा सुनिया नहीं, इन्हें मन भी लिया, सुनिए मनिए मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मल्ला। यही अंतरी तीरथ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही सारी मैल धुल जाती है। सुनिया है तो फिर मनिया है तो फिर अंदर भाव प्रेम पैदा हो गया, श्रद्धा पैदा, हिरदा साफ हो गया, शुद्ध हो गया। निरी सुनदियां गल नहीं बनेगी। ये ठीक है कि उपनिषदां दे ऋषि कहते हैं श्रुतवा धर्मं विजानाति, बई सुनन दे नाल ही धर्म की प्राप्ति होती है। दरअसल सुनन दे नाल धर्म का बोध मिलता है, पर हुण धर्मी बनना है, मेरे बोध नाल गल नहीं बनेगी। बोध तो हासिल हो गया, ज्ञान तो मिल गया, सूझ तो मिल गई, पर हुण इस सूझ नूं वरतना है, मनना है, जिंदगी दे ढालना है। इतना तो पता चल गया कि दीवा किवें जलाएगा, पर हुण पता चल गया इहदे नाल ते अंधेरा नहीं मिटना, दीवा जलाना पैना, तां जाके गल बनेगी। तो ये जिहड़ा जलाना है ना,
ये गल औखी, ये वास्ते कुछ साधन जुटाने पैने। तो मैं अर्ज करे असीं सहजे सहजे ज्यों ज्यों मनुख की सुरत गुरमत के मार्ग पर चल रही है, नवीं तो नवीं तब्दीलियां आउंदियां ने। प्रथम पड़ाव है धर्म खंड, शरीर का खंड। शरीर नूं ऐसा बनाना है जैसा गुरु कहंदा। तो शरीर की रहनी बहनी, मन की रहनी बहनी, आत्मा की रहनी बहनी। यदि शरीर की रहनी बहनी ठीक नहीं, वो मन की की हाक ठीक होगी, वो किस तरह करेगा? मन तो बहुत सूक्ष्म है, आत्मा उसको भी ज्यादा सूक्ष्म है कि जिहड़ा मोटा है शरीर दिखाई दे रहा है, इनू ही काबू च नहीं रख सकता, मन नूं कित्थे काबू च रखेगा? किस तरह रखेगा? तो प्रथम धर्म खंड, धर्म खंड की तू शरीर नूं मर्यादा दे। मर्यादा की है? तो मर्यादा सतगुर खुल के दस देंगे। रहत नामे साडे सामने ने, वो साडी रहत मर्यादा, वो शरीर वास्ते है, मन वास्ते नहीं है। बाणी का जिहड़ा पाठ है ये मन वास्ते है, शब्द का जिहड़ा जाप है वाहिगुरु वाहिगुरु का, ये आत्मा वास्ते। इतनी गल फिर मैं बार बार ना दोहरावां। जिहड़ा बंदा हुण जाप आरंभ कर देंदा है ते शरीर नूं ऐसी क्रिया, ऐसी रहत दे देंदा है जो गुरु नूं प्रवान है, गुरु नूं कबूल है, उस बंदे की सुरत अगे चल पैंदी है। वो ज्ञान खंड विच पहुंचदी, नवे द्वार खुलते हैं। पर खुलासा आपने सरवण किया है, ज्ञान खंड विच पहुंचया होया मनुख व्यक्ति का पुजारी नहीं रहता, वो शक्ति का पुजारी होता। ओदी दृष्टि विच परमात्मा व्यक्ति नहीं, शक्ति। जाप जारी है, सुरत अगे चली गई। वो सरम खंड, मेहनत का खंड, ये खंड बड़ा करड़ा, क्योंकि ज्यों ज्यों अगे जाना है चढ़ाई बिखड़ी होती जाए, बहुत बिखड़ी। और ये खंड जिथे बिल्कुल अपने आप को बदलना है, मन को बदलना है, बुद्ध को बदलना है, चित्त को बदलना है, आहंग को बदलना है। बदलने का मतलब कि दरअसल जब अंदरों कोई गलत फुरना ना पैदा होवे, मन बदल गया, कोई गलत विचार पैदा ही नहीं होता। और जब बुद्ध कोई गलत फैसला ही ना करे, बदल गई बुद्ध। बुद्ध बदली सिद्ध पाई, कहो कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। भगत कबीर कहने हैं जिहड़ी पुरानी बुद्धि सी ना मेरी, वो ते रब ने चुरा लई। पता है हरि का नाम की है? हरि का आखिरी अर्थ की है? हर का आखिरी अर्थ है चोर। मैं हैरान सी कि भारत के ऋषि मुनिया ने परमात्मा नूं हरि क्यों आख्या? हरि का मतलब है चुराण वाला, हर का मतलब है चोर। हरि दे होर कोई अर्थ नहीं। हरि परमात्मा वास्ते शब्द है हर। सहजे सहजे जब इसकी तय विच मैं गया, एक गल स्पष्ट हो गई कि ज्यों बंदा परमात्मा के नेड़े जाता है, परमात्मा मनुख के पुराने संस्कार खो लेंदा है, पुरानी बुद्धि खो लेंदा है। इस वास्ते भगत कहते हैं पुरानी जिंदगी नहीं लई, हो रब लै गया, चुरा के लै गया, पता ही नहीं चलिया कदों लै गया। ज्यों उसके नेड़े आया पुराना ढांचा ही लै गया साडा। कहो कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। पुरानी बुद्धि तो मेरी रब ने चुरा ली, ते बुद्धि बदल गई, ते सिद्धि मिल गई, आनंद मिल गया, रस मिल गया। भगत कबीर ने इत्थे आके रब नूं ठग भी कह दिता है, हर ठग जग को ठगौरी लाई। बड़े प्यारे ये शब्द ने। हरी शब्द बड़ा कीमती है। वाकई जाप करदे सुरत नेड़े गई ना, पुरानी जिंदगी नहीं रहनी, रब लै जाएगा। पुराने संस्कार नहीं रहेंगे, परमात्मा ले जाएगा। पुरानी बुद्धि नहीं रहेगी, गुरु ले जाएगा, नहीं रहेगी। इस वास्ते वो हरी है, इस वास्ते वो हर लैंदा है, इस वास्ते वो चुरा लैंदा है। तो सरम खंड विच बुद्धि बदल जाती है, गलत फैसले नहीं करती। चित्त बदल जाता है, गलत गल्लां नूं याद नहीं करता। और समझ लेना चाहिए उत्थे कि चित्र गुप्त ठीक हो गया, मनुख का अंदर का चित्र भी ठीक हो गया, बुद्धि भी ठीक हो गई, मन भी ठीक हो गया। आहंग भाव जिहड़ा हंकार से वो भी बदल गया। वो बदल गया खुददारी विच, वो बदल गया खुदी विच, वो बदल गया अणख विच। जाप जारी है, ये ठीक है, मन का रूप बदल गया है, पर मन मरिया नहीं। इतनी मैं अर्ज कर दी। सरम खंड च मन मरिया नहीं,
मन का रूप बदले, अंदरों गलत विचार पैदा नहीं होते, सही पैदा होते हैं, पर कर्म खंड कदे विचार रहिंदे ही नहीं, मन रहिंदे ही नहीं। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मूए कैसे हर पाए। बिना मन की मौत तो किवें रब मिल सकता है, मिलेगा ही। शर्मखंड च मन है, शुभ विचार ने, चंगे विचार ने, पर विचार है निर्विचार अवस्था नहीं, जिसके बारे मेरे पातशाह कहने ने, सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो पौ कैसे। गुरु अर्जन देव जी, सुन मंडल, कोई विचार नहीं, अपुर अवस्था, निर्विचार अवस्था, उत्थे एक जोगी बैठा है, एक परम जोत है, ना स्त्री है ना पुरुष है। नार ना पुरख कहो को कैसे। परमात्मा नर नारी नहीं है, परमात्मा स्त्री नहीं है, परमात्मा पुरुष भी नहीं है, ना नर है ना नार है। तो सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन मंडल ਇਹਦਾ मतलब विचार खो गए, और उस अवस्था कर्मखंड की अवस्था इतना प्यार प्रबल होया है, विचार खो गए, विचार कोई नहीं, निर्विचार अवस्था, मन मर गया। मन अंतर बोले सब कोए, मन मारे बिन भगत ना होए। शर्मखंड खतरा बनया रहिंदा थोड़ा जिहा, मनुख पिछे भी मुड़ सकता है, मनुख अगे भी जा सकता है। इतनी साधना करके धर्म खंड, ज्ञान खंड ते शर्म खंड तक पहुंचे है, थोड़ा जिहा खतरा रहिंदा है। विचार ते शुभ हो गए ने, लेकिन अजे भी गलत संगत विच बैठण नाल शुभ विचार खत्म हो सकते हैं, और मलीन विचार पैदा हो सकते हैं। कुसंगत, पैड़ी संगत, गलत थां ते बैठण नाल खतरा है, शर्मखंडी वास्ते खतरा है। और मैं चंगे चंगे इस तरह के गुरसिख वेखे, बड़ी साधना करते सन, बड़ा भजन करते सन, कुछ अगे चले भी सन, मुड़ गए, बिल्कुल मुड़ गए। होले होले चले सन, कोई जोर का धक्का लगे, थले जा पे। जिवें कोई 8 मंजिला मकान के उत्ते खड़ा होवे और बिल्कुल किनारे पे खड़ा होवे, उन्होंने एक धक्का दे के थले गिराया जा सकता है, पर कोई थले खड़ा होवे, उन्होंने एक धक्का दे के ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता, उते होले होले चढ़ेगा। हूबहू इसी तरीके नाल साधना कर करके मनुख कदी बुलंदियां नूं छूंदा है, इक्को ही कुसंगत का धक्का लगता थले, इक्को ही। और कई मैं देखदा इक्को ही धक्के नाल गिरे ने, ऐसे गिरे ने थले ही आ गए। कईयां दी हड्डियां चिकना चूर हो गए, उठण की हिम्मत ही कोई नहीं, हुण उठ भी सकी है, हुण उठण की इच्छा ही नहीं रही। हुण कोई गुरुद्वारा भी हुंदा है, कोई बाणी का रस भी है, कोई गुरु भी है, कोई मेरी सभ्यता भी है, कोई मेरी तहजीब भी है, बिल्कुल भुल गए। ऐसी हड्डियां टूटियां ने, उठण की हिम्मत भी कोई नहीं, बह गए, बिल्कुल लेट गए, बिल्कुल ढह गए। इक्को सट, इक्को धक्का, इतना जोर का लगा है, थले जा गए। तो शर्मखंड ये खतरा बनया रहता है। मन जिहड़ा है, इहदी एक हाल आदत है कि विचारां दे प्रवाह दे विच रहना, और इस विचारां दे प्रवाह का नाम ही मन है। ये डोलता रहता है, कदी सज्जे कदी खब्बे। उदाहरण के रूप में एक घड़ी का जो पेंडलूम है, जिवें सज्जे खब्बे जाता है, हूबहू मन की हालत यही है, कदी शरीर की तरफ जाता है, कदी आत्मा की तरफ। ये विचकार है। जब शरीर की तरफ जाता है तो वासना पैदा होती, लोभ पैदा होता है, भय पैदा होता है, तृष्णा का जन्म होता है, ईर्ष्या का जन्म होता है। तो जो मन का झुकाव आत्मा की तरफ होता है, फिर निर्वैरता पैदा होती है, निर्विचार अवस्था पैदा होती है। क्योंकि आत्मा की तरफ जाता, आत्मा साड़ के रख देती है। आत्मा ने एक जोत मनिया गया, आत्मा एक अगन है, ब्रह्म अगन है, वो साड़ दी है, विचारों को खत्म कर दी, निर्विचार हो जाता है, ये निर्भय हो जाता है, पवित्र हो जाता है, संतोखी हो जाता है। अजे आत्मा के नेड़े थोड़ा जिहा गया होता है, फिर वापस कभी बगौर मुताला कर लेना, कभी चंगे ख्याल ने, कभी माड़े ख्याल, कभी पवित्रता है, कभी अपवित्रता है, कभी कुर्बानी पढ़न नूं जी करता है, कभी नेड़े आने नूं भी जी नहीं करता, कभी कीर्तन सुनन नूं जी करता है, कभी सुनन नूं बिल्कुल नहीं जी करता। बगौर मुताला करना, ये डावां डोल हालत बनती, कभी सज्जे कभी खब्बे।
शरीर अपनी तरफ खिंचता है, आत्मा अपनी तरफ खिंचता है, और दोवें तरफ की खिंच मौजूद है। और दोवां तरह की खिंच ने तरह तरह के वसीले बना रखे हैं। मन शरीर की तरफ खिंचे, संसार के बड़े साधन ने, ते मन आत्मा की तरफ खिंचे, ये धर्म मंदिर साधन ने। जितने धर्म मंदिर ने ये सिर्फ इस वास्ते ने कि मन का झुकाव आत्मा की तरफ हो। ज्यों ज्यों आत्मा की तरफ होंदा है, यह निर्विचार होंदा है, अपुर होंदा है, खो जाता है, विचार खो जाता है, विचार नहीं रहता। और सहजे सहजे उस अवस्था में जाके मनुख पहुंच जाता है, सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार न पुरख कहो को कैसे। त्रिभुवन जोत रहे लिवलाए, सुर नर नाथ सजे सरनाई। उस अवस्था में अंतर सुनन बाहर सुनन, त्रिभुवन सुनन सुन। सुन समाद अनहद तैनात, कहन न जाए अचरज दिस। कोई फुरना ही नहीं, अफुर अवस्था, सुन समाद, अंदर कोई विचारों का प्रवाह नहीं। विचार खो गए, मन खो गए, मन के वेग ही खत्म हो गए। साधना की पद्धति वख वख है। शब्द का जो जाप करना है, जिहदे आसरे ते धर्म गण ज्ञान खंड ते सर्व खंड चो लंघ के निर्विचार अवस्था कर्म खंड पहुंचना है। गुरु घर जाप है, धुन ध्यान जोड़ना। कुछ भगत इत्थे त्रिकुटी ध्यान जोड़ के भी साधना करते रहने। कबीर के बचनों तो ऐसी प्रेरणा मिलती है। कबीर कहते त्रिकुटी संद में पेखिया, घट हूं घट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी घट माए ते आ गई। कबीर की साधना शुरुआत की इत्थे दी है, वो ध्यान इत्थे जोड़ता है। भगत बहनी के मैं बोल पढ़े ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे, वो कहते हैं ईड़ा पिंगला सुखमना। क्योंकि मैं एक कर्मखंड की विचार लै बैठा, तो है ये उन्होंने वास्ते जो अभ्यास करदियां करदियां कोई माड़ी मोटी झलक वेख चुके हैं, नहीं तो बाकियों वास्ते गल फिजूल होगी। हो सकता है वो समझन समझ जाया हो रहा है, क्योंकि अगां की गल है। तो भगत बहनी जी महाराज का फरमान, उन्होंने शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के दर्ज है। ईड़ा पिंगला सुखमना, तीन बसे एक ठाए, बैणी ते संगम प्रयाग, मन मज्जन करे ते ठाए। प्रयागराज के कुंभ का मेला लगे, ते भगत जन बेणी नूं कहण लगे आओ चलीए कुंभ के मेले ते इशनान करिए गंगा जमुना ते सुरस्ती विच। वो तिन्हां दा उत्थे संगम मंडन वैसे दो ही ने, गंगा ते जमुना। सुरस्ती बारे कहण गुपत है, थल्लों आउंदी है। बैणी ने गल खोल दी है कि वास्तविक त्रिवैणी का संगम कित्थे है ते की है। भगत कहते हैं आओ चलिए कुंभ के मेले से स्नान करिए प्रयागराज में। बैणी कहते मैं तो रोज करता। हुण कित्थे गुजरात का इलाका, कित्थे यूपी के प्रयागराज, सैकड़े मील बल्कि हजारां मील की वाट। तुसी रोज स्नान करते हो, किस तरह करते हो? आप कहते ने ईड़ा पिंगला सुखमना, तीन बसे एक ठाए, बैणी ते संगम प्रयाग, मन मज्जन करे ते ठाए। आ जिहड़ी नासपा की सज्जी सुर है ना, इनू ज्योतिष ग्रंथ ईड़ा कहते हैं, खब्बी नूं पिंगला कहते हैं। उपरों एक होर सुर आउंदी है विचकार मस्तक दे, उन्होंने सुखमना कहते हैं, ते तिन्हां दा जोड़ इत्थे मंनदे ने, इनू त्रिकुटी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के जिस ढंग की विचार है मैं थोड़े सामने रखता है। त्रिकुटी भगत कबीर ने भी इसे का जिक्र किया। त्रिकुटी संद में पेखिया, घट हूं घट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी घट माए ते आगी। गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट, कहां कबीरे मठ किया, खोजत मुनि जन बाट। ये जी सज्जी सुर है कबीर ते बैणी कहते ने, ये गंगा है, और ये जो खब्बी है ये जमुना है, ते उपरों जी सुखमना आउंदी है वो गुप्त सुरस्ती है।
ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਨਾੜੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਸਤੀ ਗੁਪਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਵੈਣੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਮ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਥਾ ਇਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ, ਤਿੰਨ ਬੈਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ, ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਰ ਜੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਤਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਿਆਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਨਾਤਨ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਓ, ਘੰਟਾ ਵਜਾਓ। ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਬਦ, ਧੁਨ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੁਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਘੰਟਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਿਕੰਮੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਤਮ ਜੋਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਜਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਪ ਦੀਪ ਜਲਾਓ, ਮਹਿਕਾਰ ਸੁਗੰਧੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ, ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਦਫਾ ਉਰਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਬਣੋ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ। ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਆਤਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਜੋ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਤੈਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ, ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ, ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜੈਨੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਧੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਸਨਾਤਨੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੌਮਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਰਮੌਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਖੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ। ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਐ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ, ਕੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੇਡੇ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਾ। ਔਰ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।
नहीं, अमावस की रात लोड़ है। अंधकार के नाल भरिया हुआ साडा जीवन है, इनू ज्योतिमान कर। अंदर एक जोत जल रही है, अंदर एक दीवा जल रहा है। उस अंदर दे दीवे तो कुछ चानना मिल सके ते पहुंच सके मनुख, बाहर दीवे जलाण की प्रथा चले और अनहद नाद नूं मनुख सुन सके ते नाद का उच्चारण कर सके, शब्द का उच्चारण करके अनहद नाद तक पहुंच सके, घंटे बजाण की प्रथा चले। अध्यात्मक सुंदरता ते सुगंधी का आनंद मान सके, धूप दीप की प्रथा चली। धूप जगांदा रहे, अगरबत्तियां जलांदा रहे, अंदर की महक का कोई पता ना चले। बाहर दीवे मनुख जलांदा रहे, अंदर के दीवे का कोई बोध ना मिले, ते 12 घंटे वजांदा रहे, अनहद नाद का कोई पता ना चले, सिवाय पखंड तो होर कुछ नहीं। साहिबगंज त्रिबैणी की है, उत्थे नहीं इशनान करना, उत्थे दे इशनान नाल की होना। बैणी ते संगम प्रयाग मन मज्जन करे दिखान। बैणी कहने की जिहड़ी सज्जी सुर है ये गंगा है, खब्बी जिहड़ी सुर है ये जमुना है, उपरों जिहड़ी आ रही है सुखमना ये सुरस्ती है। ते तिन्हां दा इत्थे इकट्ठ मंदे ने, इहनूं कहंदे ने त्रिकुटी। ते कबीर नूं जद पुछया गया भी तूं कहना मैं रब दे दर्शन कीते ने, कित्थे कीते ने, किहड़े मंदिर दे कीते ने, किहड़े काबे दे, किहड़े शहर दे, किहड़े तीरथ ते तू रब दे दर्शन कीते ने? कहंदा त्रिकुटी संद मैं वेखिया। मैं तो इत्थे वेखे, अपने विच वेखे, मैं किसी तीरथ के दर्शन नहीं कीते, मैं किसी मंदिर के दर्शन नहीं कीते, मैं किसी खाने काबे के दर्शन नहीं कीते। त्रिकुटी संद मैं वेखिया, घट हूं घट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी घट माए ते आ गई। मैं तो इत्थे त्रिकुटी दे विच उसकी झलक नूं वेख लिया। और इसे नूं भगत कबीर कहने ने प्रयाग है। गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट, तहां कबीरे मन मठ किया खोजत मुन जन बात। बई त्रिकुटी किस तरह तुसी इस दे उस झलक नूं वेखिया ते इस नूं विनिया। कहंदे उत्थे एक घाट बनिया होया, काहदा? सहज सुन के घाट। सुन अपुर, कोई पुर नहीं, कोई विचार नहीं। सहज का मतलब है सरलता, विखमता नहीं, सरलता। सहज सुभाए होए सो होए, करने हार पछाणे सो। सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन माने। सहज की अकथ कथा है निराली। किसी वक्त सहज का मैं खुलासा करांगा। गुरमत दे सहज प्रवान है, अत नहीं। और गुरु अर्जन देव जी महाराज का फैसला, अति हूं धक्का खाए। जो अत करता है वो धक्के ही खाता। अत की कि शरीर नूं थका के चिकना चूर करना, ये हट है, ये अत है। नहीं, इतना नहीं थकाना कि शरीर टूट जाए। जिंदगी के किसी पहलू च अत नहीं करनी। कहते ने सैन नाई दे घर संध्या के वक्त 3-4 प्राहुणे आ गए ते तिन्ने चारे संत ते सैन नाई की धुम्मां पईयां होईयां सन भी पुरखा ब्रह्म ज्ञानी है, ये पुरुष ब्रह्म ज्ञानी। तो कुदरती गल है, ब्रह्म ज्ञानियों के घर ब्रह्म ज्ञानी आने सन। तिने चारे भजने एक 4 संत प्राहुणियां नूं वेख के सैन ने अपनी घरवाली नूं कह दिता बई भोजन बना। अज खुशकिस्मती है, संत आए, भगत आए, तू भोजन बना। भोजन बनना शुरू होया। संध्या सी। संध्या के आखिरी अर्थ ने संधि, जोड़। जिथे दिन ते रात का जोड़ होवे, दिन दिन ना होवे, रात रात ना होण, जिहड़ा वेला इसनूं संध्या कहंदे ने। संधि, दिन ते रात की संधि, दिन ते रात का जोड़, संध्या। और ये संध्या 2 टाइम होती है, सवेरे अमृत वेले भी संध्या चक्कर च ना पैना, उत्थे भी जिस वक्त पो उठती है। दिन दिन ना होवे, रात रात ना होवे, संध्या संधि, दिन ते रात की संधि। जिथे दिन ते रात की जिस वक्त संधि होती है, भजन वास्ते हिंदुस्तान के ऋषि मुनिया ने वो वक्त चुने। जिथे दिन दिन नहीं, रात रात नहीं। दिन मनुख नूं भटकांदा है और दिन मनुख के मन नूं बहुत खिलारदा है। चिड़ी चुवगी पोख उठी वजन बहुत तरह ते रात मनुख के उत्ते अपना गलबा पाती है, वो अपनी दुनिया च लै जाती है।
इस वास्ते प्राचीन समय तो संत जना ने हुक्म किया संध्या, जिथे दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है, उस वक्त तू भजन करना, मदद मिलेगी, प्रकृति को मदद मिलेगी, समा मदद करेगा, वक्त मदद करेगा। इस वास्ते उस वक्त नूं, उस समय नूं गुरु नानक ने कह दिता अमृत वेला। अमृत वो वेला ते अमृतमई है, दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है, अमृत वेला। इस वास्ते सानू 2 टाइम गुरुद्वारे आने की ताकीद है। बकायदा रहतनामे पढ़ोगे 2 टाइम आने की ताकीद है। यह गल वखरी है कि मुसलमानों को मुहम्मद साहब ने 5 टाइम की ताकीद कर दी, सानू 2 टाइम की। और ये 2 बड़ा प्राकृतिक है, सही है, नियम पूर्वक है और कुदरत से पूरा उतरता है। संधि दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है। पुरखा 5-10 मिनट बैठ के भजन कर ले, इत्थे तेरे उत्ते दिन अपना गलबा नहीं पाएगा और रात अपना गलबा नहीं पाएगी। जब पूर्ण रात हो गई तो नवे बंदे वास्ते भजन करना औखी गल हो जाएगी। जब पूर्ण रूप से दिन हो गया तो भी भजन करना औखा हो जाएगा। जब दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है, तो उदों कोशिश कर। तो 2 वक्त सानू मिलते हैं संध्या, एक सवेरे एक हुण। और वाकई इन्हां 2 समयां दा बड़ा भारी प्रभाव है। संधि संध्या अनंत काल तो ऋषि मुनि भगत जन इन्हां 2 समयां अभ्यास करते रहने नाम का, शब्द का, पढ़ना लिखना दिन भर, अभ्यास करना सवेरे ते शाम। किस वक्त? संध्या के वक्त, जब संधि आती है। त्रिकुटी संध में देखिया घट हूं घट जागी। त्रिकुटी दे नाल संधि करके जोड़ जोड़ के मैं वेखे उस परम जोत गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट। तहां कबीरे मथ किया खोजत मनु जन बाट। उत्थे सहज ते सुन दा घाट। सहज मैं अर्ज कर रहा सी, सहज अवस्था। तो संध्या का वक्त भोजन इत्थे बनन लग पिया। सहज ते सरलता वेखो तुसी सहन आई। वो 4 संत कहन लगे बई सैन जी जिन्ने चिर तक भोजन बनता है तो थोड़ा भजन कर लीए। संध्या संधि दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है, समय तो लाभ उठा लो। लोग समा पास पै करते हैं, हैरानगी होती है। कईयां कोल तो समय बिल्कुल थोड़ा रह गया है, पैर कबर दे चले, अजे भी समा पास पै करते हैं। समय को सफल करने की कोशिश नहीं चाहिए तो सी समा सफल करते, वक्त को भाग लांगे, वक्त को सिरे चाड़। खैर संध्या है, समय तो लाभ उठा लेंगे। तो खड़तालां पकड़ लिया और खड़तालां नूं सुर करके प्रभु के गीत गाने शुरू किए। सैन भी विचे शामिल होया। और एक रंग रतड़ा होवे ना, एक सिर्फ एक, वो 10-15 बंदियां नूं जोड़ देवे। कुदरती गले सतसंगत की इस वास्ते महिमा इत्थे एक भी कोई भजनीक होवे उहदे असर नाल कई जुड़नगे। इस वास्ते कहा गया नवे बंदे वास्ते कलियां सतसंग करना बड़ी औखी गल है। उन्होंने गुरुद्वारे आना चाहिए। गुरु द्वारे होए सोझी पास इत्थे गल बने। मतां कोई एक होवे रंग रखड़ा, मतां किसी एक दी सुरत अगे गई होवे ओदा सदका गल बने। कोई एक सत दे नेड़े चला गया होवे। भगत कबीर ने साफ कह दिता है, कबीर वास्तविक 10-15 साधु अगर जिथे बैठे हो भजन कर रहे हो तो कबीर कहने उथे चोर चला जाए। कबीर धरती साध की साधना करने वाले जिथे बैठे हो, जुड़े जिथे बैठे हो, तस्कर बैसे गाय उथे चोर आ जाए। गाय कहने थान, उस थान से चोर आ जाए, डाकू आ जाए। धरती भार ना ब्या पाई उनको लाहू ला। साधुओं से कोई असर नहीं पैना उस चोर का, पर चोर बदल जाएगा, ठग बदल जाएगा। अगर वाकई वो साधु ने, इतनी मैं अर्ज कर, अगर वाकई वो साधु ने। हुण तो मैं देखना साधुओं के डेरिया च चोरी हो जाती, बदलना की खाक बदलना। लोग साधुओं ने लुट के लै जाते, जिन्होंने कहते संत जी ने अगे डाका पै गया, हाथ हो गए, डाकू बदलिया। जिथे तो सज्जन ठग बदल जाता, बाबे का बचन सुन के, बाबे का गीत सुन के। चोर बदलिया नहीं,
भगत कबीर कहते हैं धरती भार न व्यापी उनको लाहू लाए, चोर लाहा खट के ले जाए, चोर की जिंदगी बदल जाएगी। कहते हैं एक सूफी संत लेटिया होया सी अपनी झुग्गी च, एक चोर वड़ गया उसकी झुग्गी च, ठंड के दिन सन, कंबल ओढ़ के सूफी सुता होया सी, सारा घर टटोलिया, झुग्गी टटोली, चोर के हथ कुछ नहीं आया। वो जिस वक्त जान लगा ना झुग्गी तो फकीर कहता है भी गुरमुखा गल सुन, मेरे घर में तेनों होर कुछ नहीं लभ्या, मैनू अफसोस है, तू खाली जा रहा है, रात बड़ी ठंडी है, ए कंबल लैंदा जा, यही है मेरी कुल दौलत, ए लैंदा जा। कई चोर बदल गया, पैरी पै गया, मुड़ के जिंदगी कदी चोरी। साधु के घरों चोर होके आए तो फिर चोरी, साधु के घरों ठग होके आए फिर ठगी, साधु के घरों जालम होके आए तो फिर जालम नहीं। बाबर ने तो सिर झुका दिता सी गुरु नानक देव को, भावें बड़ा जालम सी, भावें बड़ा कठोर सी। खैर मुख्तसर अर्ज करिए, रंग रतड़े उन्होंने चारां विचों किसी की सुरत जरूर जुड़ी होगी। जब चारों कीर्तन करन लगे किसी की सुरत जरूर जुड़ी है, तो जब जुड़ी है तो बाकी तिना की भी जुड़ गई। ऐसी जुड़ी सारी रात लंघ गई, सैन की घर वाली उड़ीकती रही, भोजन बना के मैं बैठी हाँ भी कदों ये आवन पिछा कर, पर जुड़ गए। सारी रात का प्रण लैके ये चारे नहीं बैठे, इन्नी मैं अर्ज कर रहे, प्रण लैके नहीं बैठे सन भाई सारी रात जागना ही है, ऐसा प्रण नहीं किया, वो तो हट हो जाएगा, वो तो अत हो जाएगा कि अति हूं धक्का था। तो जी हट करके सारी रात जागने की कोशिश करिए। कई दफा मैं देखना जो सवेरे के वक्त चले जाइए ना, उन्होंने गुरुद्वारे में निरा ही जो है शफाखाना बनाया होता, हस्पताल कोई इधर डिगया पे आता, कोई उधर डिगया पे आता, कोई उधर डठा पे आता, चेहरे कुमलाए हुए, हद हो गए, सारी रात कीर्तन किया है, चेहरे से कोई ताजगी नहीं, कोई खेड़ा नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई सरूर नहीं, अत किया है, अति हो लगता था। अति सर्वत्र विवर्जते चाणक ऋषि, राजा बिकमरा जीत दा राजगुरु साफ कहता है अति सर्वत्र विवर्जते, जिंदगी के हर पहलू में अत का त्याग कर दे, अत ना कर, क्योंकि जिंदगी की एक सीमा है, हर इंद्रिय की एक सीमा है, शरीर की शक्ति की एक सीमा है, कि जब तू असीम काम करेगा तो अत है, कि जब अत करेगा तो अति हूं रखा था। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फैसला, अति सर्वत्र विवर्जते। सिख जगत के हट वास्ते कोई थां नहीं, हट योग वास्ते कोई थां नहीं, सहज योग, सहज सुभाए, होए सो होए, करने हार बचाने सो, सहजे जिन प्रभ जान पछाने, नानक नाम मिले मनवा, सहजे सुरत जुड़ गई, सारी रात लंघ गई, एक पल विच लंघ गई, क्योंकि परम सुख से, परम आनंद से। एक घड़ी जो सानू समा दसदी है ना, साइंसदाना ने बनाई है, एक घड़ी परिपूर्ण परमात्मा ने साडे अंदर बनाई है, वो होर समा दसदी है, ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ढंग होर है। बंदा दुख दे च बैठा होवे, दुख दे च कहंदा वक्त लंघदा ही नहीं, एक मिनट मानो एक दिन बन गया, एक दिन मानो एक युग बन गया, लंघदा ही दुख दे च बैठा। रात का वक्त है, घर दे च कोई मौत हो गई है, चंचे कोई असाध पीड़ा दे च पै गया, कहंदा रात लंघदी नहीं, गिण हटिया मैं तारे, ये रात की एक युग बन गई है, दुख दे समा लंबा हो जाता, बहुत लंबा। ते बंदा बड़ी प्रसन्नता च बैठा है, खेड़े च बैठा है, मस्ती च बैठा है, कहंदा लै अज दा दिन हुणे आया हुणे ही चला गया, इन्नी छेती, एक मिनट च लंघ गया। अज दी रात ये कोई रात है, ये आई ते चली गई सिर्फ एक मिनट नहीं, रात का समा तो उतना ही है, पर खुशी दे समा छोटा हो जाता है। कहंदा लै दिन आया तो लंघ गया, दुख दे समा लंबा हो जाता है और लंघदा नहीं। कहंदा अज का दिन तो लंघदा ही नहीं, पहाड़ हो गया, अज की रात तो लंघदी ही नहीं, एक युग हो गई। दुख दे समा लंबा हो जाता है। मन की घड़ी कुछ होर दसदी है, थोड़े हाथ की घड़ी कुछ होर दसदी है, मन की घड़ी कुछ होर दसदी है। मन कुछ होर कहता है, दिन बहुत लंबा हो गया, कतई नहीं लंबा होया, पर दुख दे लंबा हो जाता है। दिन कहता बहुत छोटा हो गया, एक मिनट दे लंघ गया, कतई नहीं, दिन तो अपने वक्त सिर लंघे है, पर खुशी दे दिन छोटा हो जाता है।
खुशी दे समा जिहड़ा है ये छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। कि जब बंदा समाधि च चला जाता उन्होंने कहना अकाल, जिथे समा खो जाता, समा रहिंदा ही नहीं। दिन सो रैन नहीं, वेद नहीं शास्त्र, कहां बसे निरंकारा, कहे कबीर नर तिसे लिया वो बावरिया संसारा। समय का बोझ किस तरह होता है? दिन रात करके। कबीर कहते मैं तो उस दुनिया च पहुंच गया जिथे ना दिन है ना रात है, समा है ही नहीं। समय का बोझ तो दिन रात करके है ना। दिन सो रैन नहीं, वेद नहीं शास्त्र, कहां बसे निरंकारा, कहे कबीर नर तिसे ध्यावो बावरिया संसार। ऐ पागल बई संसारियो, किहड़े चक्कर च पए? उत्थे दिन कोई नहीं, उत्थे रात कोई नहीं। अकाल, अकाल का मतलब है जिथे समा नहीं। काल कहते समय नहीं, अकाल जिथे समा नहीं, जिथे वक्त नहीं। इतनी खुशी, इतना आनंद जिथे समय का बोझ रहिंदा ही, तो जुड़ गए चारे। इतनी खुशी पैदा हुई, इतना आनंद पैदा होया। एक रात इंज लंघी जिवें एक पल, सिर्फ एक पल। और सवेरे अख खुली, देखिए तो दिन चढ़ गए। और घरवाली ने शिकवा किया, भोजन बना के मैं बैठी। भजन ने इतना तृप्त कर दिता, भोजन भूल गए। भजन ने इतनी मस्ती दे दी, भोजन भूल गए। भजन ने इतना सरूर दे दिता, भोजन की याद नहीं रही। और भजन ने इतना लीन कर दिता, वक्त का पता ही नहीं चले, समय का बोध ही नहीं, समय का कोई पता ही नहीं चलिया। आपुर अवस्था दे चले गए। उस ही आपुर अवस्था को भगत बैणी जी कहते ईड़ा पिंगला सुख मना, तीन बसे एक ठाए, बैणी ते संगम प्रयाग, मन मज्जन करे ठाए। बई उस तृप्ति दे मेरा मन लीन हो गया। उत्थे मैं रोज इशनान क्या करता, मन लीन हो गया, मन खत्म हो गया। मन लीन हो गया, मन मर गया। जब कोई दरिया सागर विच लीन हो जाता है तो दरिया कित्थे रहिंदा? खत्म हो गया। जब मन नाम विच लीन हो जाता, मन कित्थे? उत्थे तो नाम ही रहिंदा, मस्ती रहिंदी है, सरूर रहिंदा है, प्रकाश रहिंदा है। मन खो जाता है, मन मर जाता है। और सही मैंने भगती का रस भी उदों ही पैदा होता। मन अंतर बोले सब कोए, मन मारे बिन भगत ना होए, मन मरे हाथ मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। श्री राग मंदा पहला। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो मन मरदा तृष्णा मर जाती, मन मरदा दुविधा मर जाती, मन मरदा आशा मर जाती है, मन मरदा वैर विरोध मर जाता है, मन मरदा संसार मर जाता है। और जब मन मरदा निरंकार प्रगट होता है, ईश्वर प्रगट होता है। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। कर्म खंड विच मन नहीं रहिंदा, शर्म खंड विच रहिंदा है। और उत्थे डर भी बनिया रहिंदा किथे मन मुड़ ना जाए। बड़ी मुश्किल नाल साधिया। चंगे विचार ने, हुण माड़े विचार नहीं, मन नूं निर्मल कीता है। मन मरिया नहीं, मन नूं शुद्ध कीता। हुण माड़े विचार नहीं आंदे, चंगे आंदे। पर विचार आखिर विचार ने, चाहे चंगे ने ते चाहे माड़े ने। तुसीं इत्थे चंगे विचारों च भी लीन रहो, समाधि थोड़ी लग रही है, कतई नहीं लग रही, सवाल ही नहीं पैदा। एक स्टेज ऐसी है जिथे चंगे विचारों की भी कोई लोड़ नहीं। बुरा की ते चंगा की, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणत नानक तारे सोए। कि बाहर की दुनिया भी अंदर की दुनिया भी, नेक की ते बद की, पाप पुण्य दो एक समान। पाप पुण्य ते भई कहावत, को नरक को स्वर्ग बचावत। ये दोवें कहावत ने पाप पुण्य। ये जो है उस अवस्था में कोई मैंने नहीं है, पुण्य की है पाप की है। वो ऐसी अवस्था अपुर जिथे कोई फुरना नहीं, चंगा फुरना भी नहीं, माड़ा फुरना भी नहीं, अपुर अवस्था। उसनों साहिब गुरु नानक देव जी महाराज सुन समाद अनहद ते नाद कहते। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। उत्थे एक परम जोत प्रगट होती है जो नारी नहीं है, पुरुष नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है। वो व्यापक जोत है, वही सच है, वही ईश्वर है। साहिब कहते ने जिस वक्त बंदा इत्थे ही पहुंचता है अपुर अवस्था तो कर्म खंड की बाणी जो उथों की बनतर इतनी जोर वाली है कि बचना दे ताकत आ जाती है, जबान दे सत्य आ जाती है, कदमां दे क्रांति आ जाती है, हत्थां दे बरकत आ जाती है। होर जो कुछ मिलता है, गुरु अमरदास जी महाराज ने कुछ गल खोली है। इशारतन एक पंक्ति में रखते हैं, बाकी का खुलासा कल करांगा। साहिब कहने ने 9 निधि 18 सिद्धि, पिछे लगियां फिरन जो हर हृदय सदा। ब्रह्म बिंदे
तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिवलाए, एक शब्द लिवलीन हो जाए। लीन का मतलब मन खत्म हो गया, शब्द है मन नहीं रहा, अफुर अवस्था। हुण अनाहद नाद प्रगट हो गए, 9 निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरन, जो हर हिरदे सदा अवस्था है। बड़ी क्रांति आएगी, बहुत कुछ बदलेगा और शरीर दे चों भी उस दियां झलकां मिलणगियां। और वो किहड़ियां किहड़ियां झलकां ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने कुछ लिखिआ है, पर भूमिका दे च मैं तुहाडा सारा समा लै गया। अज मेरी कोशिश सी कि गल नूं मुकाईए ते कुछ होर शुरू करिए, पर ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कौन हमारी। जिवें बाबा बुलांदा है तिवें उस पासे चल पईदा। तो कोशिश करांगे कल इस विचार नूं समाप्ति करके कोई होर लड़ी तुहाडे सामने आरंभ करिए। और गुरु बाबा मेहर करन कि अपुर अवस्था जिसकी तुसी विचार सरवण की, अपुर कोई फुरना नहीं, निर्विचार कोई विचार नहीं, बैठे हाँ अंदर कोई विचार नहीं। तो विचार का मतलब है संसार जितनी विचार करोगे उतनी दूर चले जाओगे। विचार ही लगे, जेड़े जेड़े पासे भी विचार करोगे उसे उसे पास तुसी चले गए। निर्विचार कोई विचार नहीं, तुसी बैठे हो विचार जरूर नहीं। और मैं इतनी अर्ज करते हाँ, असी पूरे के पूरे गुरुद्वारे नहीं बैठे। मन का कुछ हिस्सा घर होवेगा, कुछ बाजार होवेगा, कुछ किसी होर मुल्क दे होवेगा, कोई हो सकता है दुश्मनों के कोल बैठा होवे, कुछ मित्रों के कोल बैठा होवे। मन का बहुता एक छोटा जिहा हिस्सा इत्थे होवेगा, बाकी बाहर है। हुण साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, बीज होंदा ना ते उन्होंने दल देईए ते फिर जमीन विच बोईए, कोई पैदा होंदा, दलिया होया बीज नहीं पैदा होंदा। साहिब कहना जे एक होए तां उगवे, रुत्ती हूं रुत होए, एक होए। साबत दाना होवे, बीज साबत होवे ते उगदा है, दलिया होया कित्थे पैदा होंदा। अब क्यों उगवे दाल, दाल ते नहीं पैदा होंदी, दलिया होया बीज नहीं पैदा होंदा। साडा मन बीज है पर दलिया होया, कुछ हिस्सा बाजार पे है, कुछ हिस्सा घर पे है, कुछ हिस्सा किसी होर थां ते, कुछ हिस्सा किसी होर थां ते। धार्मिक अनुभवी पुरुष कहंदे ने जे 100 हिस्से मन दे करिए तो सिर्फ एक हिस्सा ही नाम जपण दे वेले आउंदा है, बाकी कोई नहीं, बाकी बाहर है। हुण इन्हां सारियां नूं इकट्ठा करना है, इसे नूं साधना कहंदे। ते जिस दिन सारे इकट्ठे होकर नाम जपदे ने उस दिन मन मर जाता है, अपुर अवस्था, कोई विचार ही नहीं, कोई फुरना ही नहीं। क्योंकि जिथे जिथे दे विचार उत्थे उत्थे असीं पहुंचे हुए हैं। विचार ही सानू दूर लै जांदे ने, विचार सानू संसार विच लै जांदे ने, निर्विचार अवस्था सानू परमात्मा विच लै जांदी है। तो बाहर भटकण दी जांच ते आ गई है, अंदर आउण दी जांच नहीं आई। इसे नूं मेरे पातशाह कहंदे, मेरे मन परदेसी वे प्यारे, आओ घरे। बाहर क्यों जाना, कित्थे तक जाएगा? अपने घर दे चा, अपने ठिकाने पे आ। बहुता भटके हैं, बहुत भटके हैं, आओ अपनी थां ते आ। ते जो अपनी थां दे आउंदा है, हुंदा की है उत्थे दरिया दरिया नहीं रहिंदा, सागर हो जाता, लीनता हो गई, खत्म, मन लीन हो गया, उत्थे मन मर गया। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। इस कर्मखंड विच जो कुछ प्रगट होंदा है, कल मैं कोशिश करांगा, गुरु बाबे ने मेहर की ते मेरी सुरत बनाई रखी ते विचारां तुहाडे सामने रखांगा। अज इत्थे समाप्ति, जो कुछ आपने सरवण किया, अंतिम अरदास साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों च। पातशाह जिस जिस खंड दे आपने अपनी बाणी च विचारां लिखियां ने, उस खंड दे सानू दर्शन होवन, ताकि जिंदगी सफल होवे। भुल चुक लई खिमा दी याचना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर।